ويحزنون ما يحزنون أنا أحد لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن عابهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سبحان سماواتي بما خلقت سماء مبنية ولا عظمتية ولا قمر منيرا ولا شمس مزينة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا كل ما يسير إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الذين جبرائيل يا رب من تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومات الرسالة هم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا رب أعطني أن أحدث إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله الرحمن قد أذنت لك فأعطتني جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء منية ولا أفية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فرق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في المحفل من محافل أهل الأرض وفينا من خشيتنا ومحبينا إلا ونزلت بهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه السلام زم الله يفزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تارك حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام عزم الله يفزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا الفاز وسعيد في الدنيا والآخرة رب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
वसल्ले अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपने खास गुजारों अब्बास सफी से तशरीफ लाए पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु। लेडीज और हजरात से दरखास्त है कि खामोश हो, मजलिस शुरू हो रही है। प्लीज स्पेशली लेडीज जो हैं पीछे कुछ खामोश हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सोच कर हुई
सोच कर अभी की बेटी हूँ मैं, अभी की बेटी हूँ मैं, वास मेरा भाई है, बहन ये वास की रो रो कर बहन करती है। अब भी जाओ के घुटने लगा है दम मेरा, अब भी जाओ के घुटने लगा। इस बात फिर से एक मरतबा बहन ये वास की रो रो कर बहन करती है। अब भी जाओ के घुटने लगा है दम मेरा, अब भी जाओ के घुटने लगा है दम मेरा। ख़याम जल गए भार, ख़याम जल गए भार, ये बड़ी उदासी है, बहन ये वास की रो रो कर बहन करती है। चले दिया के अब चले दिया के अब शाम होने वाली है, बहन ये वास की रो रो कर बहन करती है। एक बात करने लगा हूँ, जो मोमिन मुमाद मजलिस सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है कि बाहर के सामने तशरीफ जो आप बीबी को पुरसा देने के लिए तशरीफ लाए हैं तो बराहे करें प्लीज थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त मुजाहरा कीजिए। सैयद नबील महफूज से दरख्वास्त है और मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु प्लीज आगे आगे थोड़ा सा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, हुसैना का हुआ शोर घर में बर्पा, चले घर से शहर को बना, कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा,
देख लूं मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। दरख्वास्त करता हूं नाम हसन नबी साहब और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना हुसैन का है, गम मनाना मेरे हुसैन का है, गम मनाना मेरे हुसैन का है। बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, गम मनाना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, आशियाना मेरे हुसैन का है, आशियाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, गम मनाना मेरे हुसैन का है। जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। जिसके साए में कायनात है सब, जिसके साए में कायनात है सब, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे
हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। राबता मातमी घरानों से, राबता मातमी घरानों से, आशिकाना मेरे हुसैन का है। आशिकाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। उग रहा है जो बाग कर वो बला, उग रहा है जो बाग कर वो बला। दाना दाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। सिर्फ आशूर तक नहीं महदूद, सिर्फ आशूर तक नहीं महदूद। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। रम मनाना मेरे हुसैन का है। गुरु पढ़ी कल मंडे है, वीकडे है, तखीर पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं उन तमाम हजरात से मदद खा हूँ जो आज पढ़ना चाहते थे। इस प्रोग्राम को हम जितना जल्दी हो सके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ख़त्म हो। अब दरख्वास्त जनाब महबूब जैदी साहब से तशरीफ लाएं। बर मोहम्मद वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु। उसके बाद अली रजा साहब और हम आपसे फंड रेजिंग की दरख्वास्त करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद मौलाना साहब जो साइडों में खड़े हैं उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम वो तो खामोशी ख्याल करें। जो साइडों में खड़े हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नहीं देखा आँखों से दरिया नहीं देखा
नहीं देखा। आँखों से दरिया नहीं देखा। क्या नूर के पैकर शब अशूर जमा थे। क्या नूर के पैकर शब अशूर जमा थे। शम्मा तो बुझी लेकिन अंधेरा नहीं देखा। शम्मा तो बुझी लेकिन अंधेरा नहीं देखा। यूं जीत ली अब्बास ने दरिया पे लड़ाई। यूं जीत ली अब्बास ने दरिया पे लड़ाई। पानी में कभी फिर कहीं पहरा नहीं देखा। पानी पे कभी फिर कहीं पहरा नहीं देखा। अकबर के जनाजे पे कयामत की घड़ी थी। अकबर के जनाजे पे कयामत की घड़ी थी। शब्बीर को ऐसा कभी रोता नहीं देखा। शब्बीर को ऐसा कभी रोता नहीं देखा। देखा था कड़ी धूप में बेटे का जनाजा। देखा था कड़ी धूप में बेटे का जनाजा। लैला को कभी बैठा नहीं देखा।
बैठा नहीं देखा, क्यों देख के रोए न कि अपना बड़ा घर, क्यों रोए न, क्यों देख के रोए न कि अपना बड़ा घर, ज़हरा की तरह घर कोई उजड़ा नहीं देखा, ज़हरा की तरह घर कोई उजड़ा नहीं देखा, हर बच्चे ने जलता ख़ैमा नहीं देखा, परचम तो है आया, है अलमदार नाया, परचम तो है आया, है अलमदार नाया, सकाए हरम शाह हम खार नाया, परचम तो है आया, कहती थी सकीना के चचा लाएंगे पानी, कहती थी सकीना के चचा लाएंगे पानी, घोड़े से गिरा ज़मीन पर असवार ना आया, परचम तो है आया, वो जंग लड़ी नहर पे, याद आ गया खैबर, वो जंग लड़ी नहर पे, याद आ गया खैबर, दरिया से दिले है दरे करार ना आया,
परचम तो है आया, क्या गैरत पास थी उन प्यासों के गम में, क्या गैरत पास थी उन प्यासों के गम में, प्यासों से वो करता हुआ इकरार आया, परचम तो है आया, है अलमदार आया, सकाए हरम शाह का हम खार आया, परचम तो है आया। अब मैं दरख्वास्त करूँ ब्रदर आगा अली रजा साहब से कर तशरीफ लाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एक बार तुम मिल के पा रही खुदा के घर में रहकर भी खुदाई जिसको आती है, खुदा के घर में रहकर भी खुदाई जिसको आती है, वफादारों की अब तक रहनुमाई जिसको आती है, खुदा मालूम उसके हाथ होते तो वो क्या करता, कटे हाथों से भी मुश्किल कुशाई जिसको आती है, कटे हाथों से भी जिसको। जुल्लू में लिए दरिया की प्यास खड़ा है, जुल्लू में लिए दरिया की प्यास खड़ा है, सिफ्ते पैगंबर के दिल के धड़कने का एहसास खड़ा है, और काले कपड़े को सिर्फ अलम ही न समझो तुम, कायम के इंतजार में अब्बास खड़ा है, कायम के इंतजार में अब्बास खड़ा है। जो भी हालात हैं उनके ऊपर एक कथा कि जिस सुल्फों को परखती थी वही तेरे यदुल्लाही, जिस सुल्फों को परखती थी वही तेरे यदुल्लाही, कहीं सरकश कबीलों को वो जिंदा ही न खा जाए, कहीं सरकश कबीलों को वो जिंदा ही न खा जाए, और नबी की आल के रोजों की जानिब रुख भी मत करना, कहीं इमामे असर से पहले गाजी ना आ जाए, इमामे असर से पहले कहीं गाजी ना आ जाए। बस एक नज़म के चंद अशार काफी अच्छे से ये नज़म लिखी, आज मैं पहली दफा ही पढ़ रहा हूँ। ये मौला का तारुफ नहीं है, ये मेरे अकीदे का, मेरी मार्फत का तारुफ है। अनवार के हरम से निकाले गए अल्फाज, मार्फत की गोद में पाले गए अल्फाज, सांचाए तौकीर में ढाले गए अल्फाज, जिब्रील के परों से हवा ले गए अल्फाज। क्या नूर अला नूर है मेरे एहसास का चेहरा, इस नज्म का उन्वान है अब्बास का चेहरा, इस नज्म का उन्वान है अब्बास का चेहरा। पूरी नज़म भी मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल मुख्तसर सी। जबीन क्या है मौला की जबीन कि अक्सर रुखे वजुल्लाह पर है लम यजल जबीन,
कदरो कज़ा पे हुक्मरां है ये अटल जबीन, रूहे अजान चेहरे पर खैरुल अमल जबीन, उनके तसव्वुरात का तन्हा बदल जबीन। अरे बन जाती बोझ सब्र के अम्र पे करबला, खैरी है इस जबीन के एक बल पे करबला, खैरी है इस जबीन के एक बल पे करबला। और आंखों में वो जलाल के बस या इली मदद, वो नूर वो कमाल के बस या इली मदद, वो हुस्न वो जमाल के बस या इली मदद, और इस आंख की मिसाल बस या इली मदद। अरे नब्ज़े जहां तो इसलिए सिन दे दिया है, सिन दे दिया था, शबीर ने इस आंख को कुन दे दिया था, शबीर ने। और महफूज इसी आंख में कुन का हुनर भी है, इस आंख से खुद मौत को मरने का डर भी है, इस आंख के पर्दे में इमामत का घर भी है, ये आंख ही हुसैन के ख़ैमे का दर भी है। और हैबत में देख लेती जो अर्शे बरीन पर, सूरज पिघल पिघल के टपकता ज़मीन पर, सूरज पिघल पिघल के टपकता। अच्छा जी, अबरू की नोक नुक्ताए बाकी शबी सी लगे, अबरू की नोक नुक्ताए बाकी शबी लसी लगे, अबरू का खम हुसैन के सजदे सभी लगे, अबरू में इस्तिकामते हुक्मे जली लगे, और अबरू की ज़र्ब ज़रबते अली लगे। अरे वो जिनकी शोहरतों के फलक पे अजाने हैं, ये ही शबे मेराज की वो दो कमाने हैं, यही शबे मेराज की वो दो कमाने हैं। और जुल्फों का इक़्तिदार है लैलो नहार पे, एहसान दस्त हैं यही फसले बहार पे, और गिरती हैं जब ये शान-ए सद इफ्तिखार पे, अल्लाह गरूर करता है इस शाहकार पे। ये जुल्फ अलमदार के चेहरे का ज़ैन है, इस जुल्फ का अज़ल से ही आशिक हुसैन है, इस जुल्फ का अज़ल से ही। और आखिरी 6 मिसरे के रुखसार चश्मा इश्क का मकसूद बन गया, रुखसार खुद सहीफा दरूद बन गया, रुखसार तो अहमद का भी महमूद बन गया, और रुखसार अक्से दर्पने माबूद बन गया। अरे होता न बंद उंगलियां कटने पे ही ये खाका, यूसुफ जो देख लेता रुखसार तो सर काट जाता, यूसुफ जो देख लेता तो रुखसार सर काट जाता। बस एक नोहे के चंद मिसरे के अब्बास ने सराजुद्दीन मक्तल से दिल फिगार, मेरा सलाम लीजिए या शाह नामदार, थामे हुसैन कमर को पुकारे कि मैं निसार, किसकी सदा है आई मेरा दिल है बेकरार। अरे जंगल में वो हुसैन को बेआस कर गया, आए मैं क्या करूं कि अब्बास मर गया। चंद ज़रूरी ऐलानात और उसके बाद इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के लिए फंड रेजिंग और रौनक फरोज़ मिंबर होंगे। आज 8 मुहर्रम हराम मजलिस के अख्तिताम पर शबीह अलम शहंशाह वफा मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद होगी। कल 9 मुहर्रम हराम शब अशूर मजलिस अपने वक्त के मुताबिक शुरू होगी। उसके बाद शबदारी तमाम रात जो है मातमदारी का सिलसिला जारी रहेगा। अज़ान हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की मजलिस नमाज फजर से पहले होगी। नमाज फजर बाजमात और उसके साथ फाका रखने का मजलिस। कल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का तबूत बरामद होगा। नमाज फजर बाजमात, रोज़े अशूर हमारे शुरू सुबह 11 बजे, नमाज ज़ोहर बाजमात
और मजलिस शहादत मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम मजलिस के इख्तिताम पर कबूल बरामद होगा और मातमदारी होगी। उसके बाद फाका शकीन और मजलिस से शामिल गरीबा मगरबैन। इसके अलावा 14, 15, 16 नवंबर को इसी खाना में मोहम्मदिया सेंटर की जानिब से जो वीकेंड के मजालिस हैं, अशूरा के बाद जो वीकेंड आ रहा है उसमें हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वीकेंड आएगा 14, 15, 16 नवंबर को जुमा हफ्ता रतवार, उन मजालिस से डॉक्टर सखावत हुसैन सिंधराजवी साहब खिताब फरमाएंगे। इन मजालिस का एहतमाम जो है ब्रदर अरशद जाफरी ने किया है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि हमारे भाई मोहतरम साथी जो यहाँ पर रोज़ाना चाय बनाते थे, जनाब शेख शाहिद हुसैन साहब बहुत ज़्यादा लीड हैं। डॉक्टर ने तकरीबन उनको जवाब दे दिया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर उनके दुआ फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मौला कायनात उनको सेहत कामिला अता फरमाएंगे। आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइएगा। हमारे नोहा खान जनाब सैयद नजम रजी साहब की वालदा पाकिस्तान में इंतकाल कर गई। उनका नाम सैयदा हाजरा रजी बिन्त हमायत अली। उनकी रूह के सारे सवाब के लिए आज की इस मजलिस का इख्तिताम जनाब कैप्टन सैयद मजहर हुसैन साहब और ब्रदर सैयद तमासब शाह साहब ने किया है। आप दुआ फरमाएंगे अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अब मैं किबला मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हमारी मदद फरमाएँ। फंड रेजिंग के सिलसिले में अपील फरमाएँ। चलें आप तशरीफ लें, सदर साहब तशरीफ लें। जनाब जवेद नकवी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। जनाब सैयद जाफर शाह साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। सैयद अली शाह साहब हमारे ट्रेजरर हैं। सलीम चौधरी साहब हमारे डायरेक्टर हैं। मैं दोबारा हम कल के जो सिलसिला था उसको शुरू करते हैं। हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। हमारी सबील के बाद कल से मोमिन ने बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी मदद फरमाई है। हम चाहते हैं कि जिन मोमिन को कल ये सादत हासिल नहीं हुई वो बराह करम आज सामने आए और अपने एहतियात का ऐलान फरमाएँ। इंशाअल्लाह सैयद कायनात आपकी तौफीकात में जो है वो रोज़ खवातीन से दरख्वास्त है कि वो भी उन्होंने भी कल काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में फ़ंड जमा किए हैं और हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो पैसे जमा करती रही हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी इमदाद फरमाई है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। हाँ, काफ़ी हज़रात ने हमें जो है वो कल के बाद आज बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो उन्होंने नाम लेने का नहीं कहा, पर हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और उनकी जो जायज़ शरीक हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। अगर कोई साहब ऐलान करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम आपके सामने झोली फैलाते हैं। जो हस्ब तौफीक आपके पास है वो उसमें से हमारी इमदाद फरमा दीजिएगा। आप सब हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मदिया सेंटर आप ही के दमकदम से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुज़श्ता 14-15 साल से हम अपनी सरगर्मियों को आपकी के तावन से जारी रखे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि हमारा अपना मरकज़ हो जहाँ पर हमें आज़ादी हो, हमारा अपना एक
जो सिलसिला आज़ादारी है, जिस अंदाज से हम मनाते हैं वो हम आज़ादी के साथ मना सकें, लेकिन अभी तक हमें इस तरह की कोई जो वाज़ेह उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। बार बार अपील के बावजूद हम इस सिलसिले में कामयाब नहीं हो सके और हम यहाँ पर इमाम अली सेंटर में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इनके साथ भी हमारे मामला जो हैं वो ऊंच नीच का शिकार रहते हैं। बहरहाल दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है वो इन तमाम मामला को बहुस्न खूबी हमें तय करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम अली के सेंटर की इंतजामिया को इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि इस बारगाह का जो नीचे वाला हिस्सा है वो आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली हमें मिल जाए और उसमें जो है वो उसके जितने भी अखराजात होंगे वो उसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और उस सिलसिले में भी हम आपसे अपील करेंगे जो हमारे ये मामला इमाम अली सेंटर की मैनेजमेंट के साथ तय हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए हमें आपके फंड्स की ज़रूरत होगी। इस सेंटर की पार्किंग लॉट जो पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है उसके लिए भी तकरीबन $1.5 लाख की ज़रूरत है। उस सिलसिले में भी हमें आप सबके काम की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह जो ही इनके साथ हमारे मामला तय होते हैं हम ये अपील आपके सामने रखेंगे। पार्किंग के हवाले से आपने जो हमारे साथ ताउन किया है हम इंतहाई मशकूर हैं कि यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि गाड़ी आपको कहीं पार करना पड़ती है और यहाँ पर आना पड़ता है, फिर वापसी पर भी मुश्किल का सामना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने कदम भी आप चल कर जाएंगे यहाँ पर आए वो सब आपके लिए जो है वो बायसे सादत हैं, बायसे सवाब हैं और बीवी पाक इंशाल्लाह आपकी इस मेहनतों और काबिशों जहमतों का आपको अजर अजीम अता फरमाएंगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो हज़रात साइडों पे तशरीफ फरमा है उनसे भी दरख्वास्त है, मैं मेंबर तो पीछे नहीं कर सकता लेकिन उनसे दरख्वास्त है वो बराह करम सामने तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वालों को जो है वो आसानी हो सके। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ किबला मौलाना जनाब इमरान हैदर साकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस मजलिस से अज़ा से खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।